بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عمل آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، جتنی تعریف کی جائے اس عمل کی کم ہے۔ جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، جن لوگوں کو حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے اگر محبت ہے، چاہت ہے، تو وہ یہ لوگ عمل لازماً کریں۔ آپ نے یہ جو اوپر سکرین پر نقش چل رہا ہے، اس کے اندر کچھ نام لکھ دیے گئے ہیں۔ ان لوح مبارک کو آپ نے سات سعید یعنی پاک سات میں لکھ کر رات کو سوتے وقت سر کے نیچے بس رکھ لینا ہے۔ باطہارت اور خوشبو لگا کر آپ نے رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو بھی خوشبو میں معطر کر کے اس تعویذ کو اپنے سرہانے یا سر کے نیچے بس آپ نے رکھنا ہے۔ اور یہ اسم مبارک جو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ آپ نے لازماً پڑھ لینا ہے۔ 92 دفعہ 92 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ سکرین پر بھی جو یہ لفظ ہیں ان کو چلا دیا گیا ہے، آپ بآسانی یہاں سے بھی کاپی پینسل سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ یا مکمل، یا مکمل، الکامل، العالم، الکافی، الباسط، السلام، السالم، المحمد، الاحمد۔ دوبارہ سے ایک دفعہ غور سے سن لیں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سکرین پر بھی چلا دیے گئے ہیں تاکہ آپ آسانی نوٹ کر سکیں۔ یا مکمل، الکامل، العلیم، الکافی، الباسط، السالم، المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الاحمد۔ ان تمام لفظ جو آپ کو اسم مبارک آپ کو بتا دیے گئے ہیں، یہ کل 8 اسم ہیں، تو آپ نے ان کو لکھ لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے ان کو پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حکم سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اللہ پاک آپ کو شرف نصیب فرمائیں گے، اور اس عمل کے لیے آپ کو نمازوں کا پابند ہونا لازم ہے، رزق حلال کا پابند ہونا لازم ہے، اور تمام امور جو شریعت میں جن کی پابندی لازم ہے ضرور کریں گے، ورنہ خدا نخواستہ عزت کا یا جان کا خطرہ نہ ہو۔ اور جو پڑھ رہا ہے، جو میرا بھائی بہن پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، نورانیت قلب ہو، عشق خدا بندی ہو، اور عشق رسول و پنجتن پاک بھی موزن ہو، ٹھیک ہے؟ اور کثرت سے اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ یا تو 3 دن میں، یا تو 7 دن میں، یا 5 دن میں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ کو اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اس نایاب عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے، یہ لازماً آپ کیجئے گا۔ اجازت چاہتے ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
करना है। परहेज गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, लहसुन, प्याज, ये सब से परहेज करें। और हस्बे जायका सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी, जनाबत, सर के बाल कटवाना, मोजे, गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म का जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई हर चीज का इस्तेमाल परहेज में आता है। इन सब चीजों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। और यहाँ तक के जो परहेज जलाली और जमाली है, इसमें किसी किस्म की जो अशिया है जो इंसान के इस्तेमाल में है, जैसे रुई, जैसे जर्सी अगर लेदर की बनी हुई है तो बिल्कुल नहीं पहननी। मोजे जो लेदर के बने हैं वो भी नहीं पहनने। जो जानवरों के खाल से जो भी चीज इस्तेमाल होगी या बनी होगी, या जो घी भी होगा, चिकनाई, खाना, गोश्त, हर किस्म का जो भी जानवरों के इस्तेमाल की बनी हुई चीजें वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर फिर भी मेरी जलाली जमाली के परहेज की समझ नहीं आती तो मैंने बहुत तफसील से दोनों वीडियो बनाई हैं, जलाली और जमाली, वो आप देख सकते हैं। आप खा क्या सकते हैं? कहवे से रोटी, जब अमल करें कहवे से रोटी खाएं, पानी, चावल उबले हुए और दाल मसूर और उबला हुआ, मतलब ये कहवा हो, कच्चा कहवा ना हो, पानी के अंदर उसको अच्छी तरह पत्ती को जोश दिलवाया हो। पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हैं, वो भी उबाल कर, उसके अंदर कोई ऐसा मसाला ना डला हो, ठीक है, गरम मसाला ना डला हो, बिल्कुल लाइट, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, या फिर आप सादा रोटी नमक के साथ खा सकते हैं। ये पहली शर्त है अमल की। शर्त नंबर 2, अमल शुरू करने से पहले अमल की ज़कात लाजिम है। वजाहत से बता देती हूँ, अमल की ज़कात किसी गरीब को 3 दिन खाना खिलाएं और 3 दिन रोजा रखें, या फिर 6 किलो चीनी हशरात को डालें, कीड़े मकोड़ों को डालें, चूटियों को डालें, किसी जंगल में या दूर जहां पर उनका घर हो या जहां पर वो रहते हों। नंबर 3, मस्जिद या मदरसे में 10 किलो गंदम की जो कीमत होती है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये जो भी आप देंगे ये एक किस्म का सदका है, सदका जारिया है, ये लाजमन आपने देना है ताकि आप में जो भी आप अमल करें उसमें आपकी कामयाबी हो। शराइत नंबर 3, अमल हमेशा 9 चंदी जुमेरात को शुरू करें, क्योंकि पहले अमल है तो अमल को चाहिए, ये जो अमल कर रहा है उसको चाहिए 9 चंदी जुमेरात को शुरू करे और किसी दिन को भी अमल शुरू ना करे। वैसे तो अमल के लिए जो बुजुर्गाने दीन हैं उन्होंने चांद की 14 तारीख, 11 तारीख और 9 चंदी जुमेरात का बहुत जिक्र किया है। तो हमेशा अगर अमल में किसी दिन का आपको कहा जाए तो उसी दिन करें, और अगर वैसे आप अमल शुरू करने लगे हैं कोई सा भी तो 9 चंदी जुमेरात को लाजिम करें जो पहली दफा आप अमल करेंगे, ठीक है। इस्लामी महीनों की पहली तारीख के बाद जो भी जुमेरात आती है इसको 9 चंदी जुमेरात कहते हैं। और 9 चंदी जुमेरात बुध की, जैसे ही मगरिब की अजान होती है बुध वाले दिन, मगरिब की अजान के बाद 9 चंदी जुमेरात का वक्त शुरू हो जाता है इस्लामी महीने के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह आप मेरी जो मैंने 9 चंदी जुमेरात की वीडियो बनाई है आप वो देख सकते हैं। शराइत नंबर 4, अमल मुकम्मल यकीन और कामल के साथ करें, दिल में कोई शक ना हो, वरना अमल बेफायदा है, बेफैज है। अमल के ऊपर जो ये लोग यकीन नहीं रखते और जो कहते हैं हमें अमल का कोई असर नहीं, अमल गलत नहीं होता, आप ही की कहीं ना कहीं गलती होती है, तो अमल करने से पहले अदाब हाजरात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अदाब हाजरात को मद्देनजर रखें, क्योंकि जो मैंने शराइत आपको बताई है उनको भी देखें, अदाबों को भी देखें, तो पहले ही चिल्ले में आपको कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जरूर होगी। और हमेशा कम से कम अमल को 3 चिल्लों तक जरूर किया करें। तीसरे चिल्ले अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई गलती नहीं करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी।
मेरी शरायतों को देख के, आदाब हाजरात को देख के जो मैंने आपको बताए हैं उससे अमल करें। और नंबर जो मैंने आपको 5 बताने लगी हूँ, गौर से सुन लें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप अगरबत्ती, जो जादुई अगरबत्ती है, जो मुकलात परी हमजात और जो उनकी हाजरात को मतलब कि खींचती है, रूहों को खींचती है, तो उनको हमने एक हदिया रखा है। उस हदिये के मुताबिक हम सबको देते हैं मदरसे वाले। तो आप भी, आपके लिए ये कर दिया गया है कि आप भी ऑनलाइन जो हमसे मंगवा सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप वहां से देखकर उसका तरीकाकार देख सकते हैं और जिस दिन लेनी हो वो मंगवा सकते हैं। हाजरात में काजल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो मेरे वालिद साहब ने काजल भी लोगों को देते हैं। तो वो काजल उनका नायाब काजल है, वो उन्होंने ही पढ़ाई की होती है। वो काजल लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह जरूर जो है हाजरात का नुज़ूल होता है। ठीक है, आपने वो काजल अगर आपने लेना है तो उस पर थोड़ा सा हदिया होगा, वो मदरसे को मिल जाता है, तो हदिया आप लाजमन अपनी खुशी से दे सकते हैं। और अगर आप अमल शुरू करना चाहते हैं या आप अमल का हदिया देना चाहते हैं तो बेशक हमारा जो है मदरसा आप उसमें दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हदिया लगता है। अगर आप हमारे मुल्क में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो आप हदिया जरूर दे सकते हैं। और अगर आउट ऑफ कंट्री से हैं तो वो भी हदिया अपने अमल का किसी को नहीं देना चाहते, या आपके लिए आसानी पैदा कर दी है, जो आपको बताया गया है कैसे उसकी ज़कात देते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो आप वो हदिया हमें इजी पैसे के जरिए, और अगर बाहर हैं तो बैंक के जरिए वो हदिया आप हमें हमारे मदरसे को दे सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इजाजत का एक बहुत बड़ा अमलो दखल होता है अमलियात की दुनिया में, ताकि आपकी मदद की जाए और आपके लिए बच्चों से दुआ की जाए। तो क्या ही अच्छा हो कि जो बच्चों से आपके लिए दुआ की जाती है वही बच्चे आप लोगों का जो दिया हुआ सदका जारिया है या वो हदिया है वो उन बच्चों के इस्तेमाल में है जो आप लोगों के लिए जब आप अमल करते हो, हमें बताते हो, तो हम आपके अमल की दुआ करवाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो हदिया देते हैं। ठीक है, अगर आप भी देना चाहते हैं जो अमल करने से पहले, तो फीसबिल्लाह आप भी हमारे मदरसे को दे सकते हैं, मदरसे के बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको अपनी शायद नंबर 6 बताती हूँ। अमल में हिसार का लाजिम होना बहुत जरूरी है, वरना खुदा न खासा आप पहली दफा अमल करते हो, रिजत का खौफ और नुकसान होता है। ठीक है, जिन लोगों ने तो ज़कात अदा की, जिन लोगों ने इजाजत ली होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनके पीछे हम दुआ करते हैं। ठीक है, मेरे वालिद साहब दुआ करते हैं, मेरे मदरसे वाले दुआ करते हैं, मदरसे के बच्चे दुआ करते हैं, क्योंकि हम मदरसे में भी इस चीज की तालीम देते हैं अमलियात की, तो वो दुआ करते हैं। ठीक है, वरना अगर आप हमें बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कि आप अमल कर रहे हैं। ठीक है, अमल में हिसार जो भी आपको बताया जाता है वो हिसार हर अमल के साथ जो भी हिसार है वो लाजिम करें। हिसार का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सूरह फातिहा 1 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार, 3 बार चारों कुल पढ़कर किसी चाकू या खंजर से अमल करने से पहले वो दायरा खींच ले और उस हिसार में आप बैठ जाए, उसी को हिसार कहते हैं। अपने ऊपर भी फूंक मारे, दायरे के पास भी जहां जहां दूर दूर तक फूंक मारते और दायरे को भी हिसार से कायम कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हिफाजत रहेगी। कोई भी चीज, कोई अगर आप हमजाद, मोकलात या परी का अमल करते हैं या उनको हाजिर करते हैं तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो उस दायरे में दाखिल नहीं हो सकती, उससे बाहर ही रहेगी। ठीक है, ये अमल की जो शराइत हैं ये मैंने लाजम आपको भेजी हैं, ये जरूर सुन लें। ये इनको किए बगैर आप अमल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब शराइत जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो भी गौर से सुन लें। अगली शराइत, अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफ्यूम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, और बियर्स वगैरह हर चीज, तो नौज़ुबिल्लाह ये तो वैसे ही हराम चीजें हैं, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी है ना, इनको भी नहीं आपने पीना, क्योंकि क्या पता ये किसी गैर मुस्लिम ने बनाई हो। अमल में जब जमाली जलाली परहेज आता है वो बहुत बड़ा है, उसकी वीडियो भी लोड कर दी गई है, वैसे भी बता दिया गया है, उससे भी आप देखकर अपनी इल्म में इजाफा करके अमलियात की दुनिया में कदम रख सकते हैं। इसी के साथ अगली मैं आपको शराइत बता देती हूँ कि जब भी आपने अमल करना है तो लाजिम है कि आप अपने पास जो मकनातीसी अगरबत्ती है उसको जरूर जलाएं। मैंने पहले भी बताया है, अब दोबारा फिर बता रही हूँ, उसका थोड़ा सा हदिया है, वो आप
हमें देकर वो खरीद सकते हैं। उसका हदिया देकर आप लोग को वो पोस्ट कर दी जाएगी। पोस्ट आपको TCS के जरिए भी की जाती है और डाक अगर दूर है तो डाक के जरिए भी कर दी जाती है। वो बासानी हर इलाके में जिस तरह का प्रोसीजर होता है वहां पर उनके पते पर लाजमन पहुंचा दी जाती है, क्योंकि हमारे मदरसे वाले सबको या तो उससे TCS से देते हैं या फिर डाक के जरिए उन तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाती है। ये आप लोगों की सहूलत के लिए बताया, ताकि आप लोगों को नहीं पता, अगर आप अगरबत्ती ले भी आओगे लेकिन आपको उसका तरीका या उसको बनाने का तरीका नहीं पता तो वो आपको बता दिया जाएगा। आप वहां से जब आप हमें बताएंगे या आप हदिया पोस्ट कर देंगे या सेंड कर देंगे तो फौरन इधर से मदरसे वाले पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और नंबर 2, जो तिलिस्मानी काजल है जिसको जैसे ही लगाते हैं हाजरात का नज़ूल हो जाता है। साथ में तिलिस्मानी काजल के साथ हम एक तावीज देते हैं, तो जैसे ही आप उस तावीज को जलाते हैं तो जो भी आप अमल कर रहे होते हैं उसकी फौरन हाजिरी लाजम हो जाती है। उस काजल के साथ आपको वो तावीज भी हम सेंड करते हैं, वो तावीज भी दिया जाएगा और वो आपने तावीज को आग में जलाना है तो वो हाजरात का नज़ूल फौरन हो जाता है। अगर परी की हाजिरी करवाते हैं, तस्खीर करते हैं तो वो तावीज जरूर जलाना पड़ता है। ये मैंने बहुत आपको एहतियातन शराइत बताई हैं, इन सबको पूरा करने के बाद अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले चले में थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सा हदिया है, उसको खर्च करने में आप ही का फायदा है। आखिरत में तो आपको उसका अजर सवाब मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों को लगता है जो दुआ करते हैं मदरसे के, ठीक है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जो भी शराइत आपको बता दी गई है उसको मद्देनजर रख के अमल शुरू करें। मैंने बहुत हिसाब लगा रही हूँ कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं 1000 तक अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अदाब का खास ख्याल रखें, लेकिन कोई अदाब का खास ख्याल नहीं रख रहा, तो इसीलिए दोबारा से वीडियो पोस्ट की गई है, ताकि हर वीडियो में ये पोस्ट की जाएगी ताकि आपको पता लगे अदाब का क्या तरीका है। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियो मुखलात और हमजाद और परियों पर है। तो मैं चाहती हूँ अच्छी अपने इल्म को आप तक पहुंचा दूं और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही औरों का भी भला होगा। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच